Okay, so we were talking about the replication of DNA. So in this replication of DNA, there is a problem when it comes to the termination of the telomeres, and we are talking about the eukaryotic DNA. Okay, it is the linear DNA. So the problem of replication of the telomeres occurs in the eukaryotic DNA since it is linear DNA. Okay. Before we talk about the termination and the problems and how to solve them, the word telomeres, uh, you should know the meaning. What is the meaning of telomeres? Now, telomeres are the end regions of DNA, which is non-coding region. Non-coding region. It is rich in guanine, that is G rich protein, G rich areas. And in humans, if we take the example around 8,000 to 10,000 linear nucleotide are present in the end, and this end region is seen in the lagging strand. Okay, lagging strand, and I said it is linear and it is single. That means if I draw the diagram, this is the DNA and leading strand. Okay, this is the lagging strand, which is here, this region. Okay, this region is the overhang. It is called as the overhang, HANG, overhang. And since this is not protected and it is single stranded, so this may be tend to be attacked by the DNA nucleases. क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियस आकर के इन पे अटैक कर सकता है, इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, कट कर सकता है, राइट. सो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम अब बात करते हैं. बट देन व्हाट आर दीज ओवरहैंग्स एंड व्हाई दीज ओवरहैंग्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, व्हाई दिस ओवरहैंग्स are important. So you know that when the replication is going on, okay, now in this replication what happens is this is the leading strand. Okay, this is the leading strand, 5' to 3', and here so this is one strand of DNA, 5' to 3', and this other one is the opposite, 5' to 3'. So while replication, these two will open up. Okay, these two will open up like this. Suppose this replication is going on, this region is the end region. Okay, so 5' to 3', and this is the parental strand, this color. So what happens that for the replication,
we need a primer, which is, we should have 3' end with OH, so that the new DNA strand is synthesized. Okay, so here one primer is there and the new DNA is synthesized from 3' to this is 5' end. Okay, and here 5' and ultimately a complete this thing. Okay, till here. So this is the this will be the lagging strand. Here this is one primer, and likewise different primer are added. Suppose here a little bit, so again 3' end and again like this. Okay, so these are the lagging strand, and this is how it is going on. And for the leading strand, this side, this is 5', this is a primer 3' and OH group, and further a continuous strand is made. Okay, like this. So for the termination, you know that what happens, that these RNA primers are removed. Okay, these RNA primers are removed. So for leading strand, this is the leading strand. Leading strand, there is no problem, because once the primer is removed, suppose the primer is removed. Okay, so what is left here is OH group. So OH group is there, then a new this thing DNA, this was the old one, and the new DNA can be synthesized, and the helicase ligase will come and it will attach it here. So continuously this is formed. But in case of the lagging strand, what happens when the primers are removed? When these primers are removed, what happens? ये पूरा ही चला गया. Let me see, मैं इसको कर देती हूँ पूरा. Okay. So few of the in between, this can be made. Okay, from 3' to 5', the activity can be done. DNA polymerase इतना यहाँ तक बना देगा. प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5' एंड बचता है और 3' एंड जो होता है वो रह जाता है. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता. तो यहाँ से प्राइमर जब हट गया है, सपोज यहाँ पे जो ये प्राइमर लगा हुआ था, इधर प्राइमर लगा हुआ था, है ना, तो इसका ये 3' एंड था और ये 5' एंड था. तो ये जब यहाँ से प्राइमर हटेगा तो एंड इसका जो होगा वो रह जाएगा 5' एंड. तो 5' एंड पे DNA पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती है. तो इसलिए ये जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये प्राइमर ये रह गया, तो लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो ऐसे स्ट्रैगर्ड रह जाता है ना. लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा जो है वो स्ट्रैगर्ड रहता है. जैसे ये अगर लीडिंग स्ट्रैंड है तो ये लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ तक रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है, वो प्राइमर नहीं होने की वजह से वो रिप्लिकेट नहीं हो पाता है. ठीक है, तो इसको हम ओवरहैंग्स बोलते हैं. अब क्या होता है कि सेल जो होता है वो रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है ग्रोथ के वक्त, है ना. तो करीब 50-60 बार वो रिप्लिकेट होता है, और हर बार जो होता है ये जो रिप्लिकेशन इसकी जो ये जो ओवरहैंग्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो एक बार में सपोज़ इतना निकल गया, है ना, दूसरे सेल डिवीज़न में इतना निकल गया, तीसरे सेल डिवीज़न में इतना निकल गया, फोर्थ में इतना निकल गया, है ना. ऐसे से करके जो हैं ये इनके ओवरहैंग्स ख़त्म होते रहते हैं ड्यूरिंग रिप्लिकेशन. अदरवाइज़ तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है. सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स जो होते हैं वो अभी आप बताऊँगी मैं आपको. तो जब रिप्लिकेशन होती है तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये धीरे धीरे करके ख़त्म होता रहता है, अनटिल इट रीचेज़ अ पॉइंट जहाँ पे क्रिटिकल आपके जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं. अदरवाइज़ ये जो रिपीटेड सीक्वेंस होती हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, हेक्सामेरिक सीरीज़ होती है.
टी टैग बोलते हैं इसको, जी है ना, ये वाली सीक्वेंस होती है, हेक्सामर्स होते हैं ये। और ये 100 से लेकर के करीब 10,000 तक रिपीट होते हैं ये, है ना। तो ये जो ओवरहैंग्स होते हैं ये इतने होते हैं। तो हर बार जो है वो थोड़े थोड़े निकलते रहते हैं। तो उस पूरे क्रोमोसोम को, है ना, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ यहाँ से इधर निकल गया, है ना, क्योंकि ये रिपीट्स होते हैं और इनमें ऐसा कोई कोडिंग रीजन नहीं होता है। फिर यहाँ से इतना निकल गया, फिर इसका जो है ये अल्टीमेटली यहाँ पे सपोज़ हमारा जीन्स है, तो अगर यहाँ से कम होते होते हर एक सेल डिवीजन में कम होते होते यहाँ पे एक ऐसे रीजन में पहुँचेंगे जहाँ पे हमारे इम्पॉर्टेंट जीन्स हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल लिमिट, है ना, क्रिटिकल लिमिट। वहाँ पे अगर सेल पहुँच जाता है उसको हम बोलते हैं, उस लिमिट को नाम है हेफ्लिक लिमिट, है ना। हेफ्लिक लिमिट तक जब पहुँच जाता है तो उसके बाद सेल जो होता है आगे ग्रो नहीं करता है, ठीक है, आगे डिवाइड नहीं करता है, और उसको हम बोलते हैं सेल एजिंग, ठीक है, सेल एजिंग बोलते हैं। या फिर हम इसको ब्रेक डाउन बोल सकते हैं, या सेनेसेंस बोल सकते हैं, है ना। सो है ना, सेनेसेंस। तो मतलब कि जो एजिंग हो रही होती है ये बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर हो रही होती है, जो जैसे जैसे सेल बढ़ते हैं। बट हमें ये सेल की एजिंग जो है, कुछ ऐसे सेल्स जहाँ जैसे स्टेम सेल्स हैं, जैसे लिवर सेल्स हैं, है ना, ऐसे सेल जहाँ पे हम लोग सेल डिवीजन को नहीं रोक सकते, ऐसे सेल्स में हमें अपने ये जो टीलोमियर हैं ये प्रोटेक्ट करने होते हैं, है ना। तो इस प्रोटेक्शन में जो होता है वो टीलोमरेज एक एंजाइम होता है, ठीक है, वो रोल प्ले करता है। लेकिन टीलोमरेज पे जाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ओवरहैंग लूप्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये जो है, ये ओवरहैंग लूप जो है, ये अपने आप को, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है बाय इट इज़ प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय सेवरल एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, और एक नॉट बना देते हैं ये, है ना, एक नॉट बनाते हैं, या इस नॉट को बोला जाता है टीलोमर लूप या लूप्स। और भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, ये टीलोमर है तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, है ना, टीलोमर्स लूप जो हैं ये बनते हैं, ठीक है। तो या फिर उनको टी लूप्स भी बोलते हैं। और ये बहुत सारे एंजाइम्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, और ये कलेक्टिवली इन एंजाइम्स को हम बोलते हैं शेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स, शेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स। और इसमें जो एंजाइम होते हैं वो TRF1, TRF2, फिर इसके बाद आपका RAP1, TIN2, TPP1 एंड POT1, है ना। ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये एक नहीं होता है, काफ़ी जगह पे जुड़े होते हैं। तो ये सारे प्रोटीन्स जो होते हैं ये जो टी लूप है इसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये टी लूप देखो कैसे नज़र आएगा, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारा जो है DNA की, ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है ना, और ये इस तरीके से यहाँ पे आया। फिर जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड जो है यहाँ पे क्रॉस लेगा ये ऊपर को, फिर नीचे होकर के, ठीक है, यहाँ पे आकर के ये फिर से क्रॉस लेकर के यहाँ पे ये ATT सॉरी TTAGGG, है ना। और नीचे जो है यहाँ पे इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री कर जाएगा AATCCC, है ना। तो इस रीजन को यहाँ पे ये ओवरहैंग है, ये सिंगल रीजन है ये वाला, है ना। तो ये जो रीजन है जहाँ पे ये सारा चला गया, जस्ट अ सेक, ओके। सो ये जो रीजन है जहाँ पे ये तीन ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसको ये डिस्टर्ब कर देता है, और ये ऊपर की ओर करके खुद यहाँ घुस जाता है और इसके साथ बेस पेयरिंग कर देता है ना। इस रीजन को बोला जाता है
डिसोसिएशन या डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड को डिस्प्लेस करके खुद आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट लूप, या इसको हम डी लूप भी कहते हैं, ठीक है। इस रीजन को बोला जाता है। और ये पूरा ये जो लूप पूरा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं टी लूप, ठीक है। इसको बोला जाता है टी लूप। सो ये जो ओवरहैंग है यहाँ पे, इसको इसके साथ पेयर करके ये प्रोटेक्ट करता है, और अल्टीमेटली ये बना रहता है, और सेल डिवीजन जो होते रहते हैं। तो जो अनवांटेड रीजन है वो जाता रहता है अंटिल दी हेफ्लिक्स लिमिट इज रीच्ड। उसके बाद सेल एजिंग होके वो चला जाता है ना। अब यहाँ पे मैं ये कॉम्प्लेक्सेस बना दूँ, जैसे सपोज यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं, ये हमारा, मैं कलर चेंज कर दूँ, ओके। सो यहाँ पे राइट, ये TRF1 TRF2, ठीक है। इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर एक है, फिर यहाँ पे, ठीक है। सो आपको मैंने बताया था, दिस इज़ RAP1, दिस इज़ TIN2, फिर आपका TPP1, और लास्ट में है ये POT1। सो ये पूरा का पूरा ये जो येलो है ना, ये पूरा का पूरा इसको हम बोलते हैं शेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स। ये पूरा जो लूप है इसको मेंटेन करके रखता है। और यहाँ पे इसके जो यहाँ पे 3 एक्चुअली DNA आ जाते हैं इसमें, एक ये है, एक ये है, और एक ये है ना, 3 हो जाते हैं। और यहाँ पे जो बेसिकली ये ऑरेंज वाला है, इसको हटा करके ये ग्रीन वाला घुस गया है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये अपने आप को मेंटेन करते हैं, जो टीलोमर्स के जो एंड्स होते हैं, ठीक है। सिंगल ओवरहैंग्स रहते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, और 8,000 से 10,000 तक न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं। और ये रखे जाते हैं ताकि हर एक सेल डिवीजन में जो सेक्रीफाइस होता है कुछ एक न्यूक्लियोटाइड का, वो होता रहे अंटिल हेफ्लिक्स लिमिट आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये सेल डेथ हो जाती है, राइट। और ओवरहैंग्स को, ये जो टी लूप्स हैं, ये जो है टीलोमेयर रीजन में अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ शेल्ट्रिन कॉम्प्लेक्स। ये तो हुआ टीलोमर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको टीलोमेरेज एंजाइम के बारे में बताऊंगी, जो कि हेल्प करते हैं ऐसे सेल्स में जिनमें कंटिन्यूस डिवीजन चाहिए होता है। जैसे स्टेम सेल का मैंने एग्जांपल बताया, वहाँ पे सेल डेथ नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आपके रेड ब्लड सेल भी कंटिन्यूसली बनते रहते हैं बोन मैरो में, ऐसे रीजन्स। तो वहाँ पे टीलोमरेज जो होता है वो किस तरीके से हेल्प करता है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, ठीक है।